Hello friends, welcome to my YouTube channel. So students, today in this video, we discuss some case study questions for Board Examination 2021. So let's start. Question number 1. A building has a gate in the form of a rectangle. It is inscribed in a semicircle of radius r with one of its sides on the diameter of the semicircle. On the basis of above information, answer the following questions. So you can say this is a semicircle and a rectangle which is fit to the semicircle and inside inscribed in the semicircle, and here in question it is given that the value from O to B is x and C to B is y and O to C, this hypotenuse is r. Okay, and so on the basis of this information we can start the question. So what is the question? First, bit 1. The values of x and y in terms of theta and r. Okay, the values of x and y in terms of theta and r are what? So you know this in triangle. And from first I'm telling bit 1, bit 2, bit 3 questions are always easy questions in case study questions. In general easy questions. So now in triangle OCB. In triangle OCB. In triangle OCB, the base is x and the height is y. And question is the values of x and y in terms of theta and r. You can say how to find cos theta. Cos theta equal to, okay, cos theta equal to b by h. B means what? B means base, the x divided by r. Implies that x equal to r cos theta. So base is r cos theta and sin theta equal to similarly y by r perpendicular divided by hypotenuse. So y equal to r sin theta. So r cos theta and r sin theta, which bit is true? Bit B is true. So bit 1 completed. Now second question is, if area of a rectangle A is expressed in terms of theta and r, okay, this is theta, okay, symbolic theta and r, then A is equal to what? Area. Area of the rectangle is equal to length into breadth. Length is what? Length of rectangle is AB. Length is AB into breadth is BC. And you can say length half is OB. OB is x. So AB will be 2x. 2x into BC. BC means what? Y. So 2xy. 2xy. Now you can see in the choice, no 2xy present. 2xy नहीं है. चॉइस में थीटा और आर में ही है, और थीटा और आर में ही चाहिए, क्वेश्चन में पूछा है. तो x का वैल्यू तो r cos थीटा है, यू नो, 2 into x into y. So 2 into x into y, x means r cos theta and y is what? R sin theta. So r into r square to sin theta cos theta is sin 2 theta. So r square sin 2 theta is, bit A is the answer. Bit 3. When A is maximum, the value of theta is what? Symbolical theta. When A is maximum, so area is what? Area equal to r square sin 2 theta. ये अब भी जस्ट हम लोगों ने निकाला. तो we want area maximum. For maximum, just derivative 2 times dA by d theta. dA by d theta equal to r square into r square constant. Sin 2 theta is cos 2 theta. Derivative of sin 2 theta is cos 2 theta into derivative of 2 theta, that is 2. So 2 r square cos 2 theta. Double derivative d square by d theta square. So double derivative is 2 r square constant and cos 2 theta derivative is minus sin 2 theta into 2. So minus 4 r square into sin 2 theta. But we want maximum. So maximum value dA by d theta, the first derivative should be 0.
The first derivative is 2r square cos 2 theta. 2r square cos 2 theta equal to 0. Implies that cos 2 theta equal to what? 0 by 2r square, that is 0. So 2 theta will be 90 degree because cos 90 degree is 0. So 2 theta is 90 degree, then theta is equal to what? Pi by 4. So this is the answer. This is the answer of bit. This is pi by 4. Okay. Bit B. Answer is bit B. Bit 3 questions answer is bit B, pi by 4. Okay. Next for bit 4. Okay. For maximum value of A, the dimensions of rectangular what? Dimensions of rectangle's dimensions are length and breadth. So length is what? Length is 2x. Length is 2x and breadth is what? Breadth is y. 2x means 2r cos theta. And breadth is what? Y. Y means r sin theta. This question is very flattery type questions. Very easy. Okay, 2r cos theta, 2r cos theta. Theta means what? Pi by 4. We just found here cos theta. So theta is pi by 4. Cos pi 4 is what? Pi 4 is 1 by root 2. Cos pi 4 is 1 by root 2. Cos 45 degree 1 by root 2. So 1 by root 2. Root 2 to cancel. So root 2r. So length is root 2r. Length is root 2r. So breadth is what? R sin theta. R sin theta means sin pi by 4. Sin pi by 4, 1 by root 2. So r by root 2. So answer is root 2r, r by root 2. Root 2r, bit C, r by root 2. Bit C is the answer. Now guys, come to question number bit 5. Okay, question number bit 5. Maximum value of A is what? A is maximum value. A is maximum value means maximum value of A. So area is what? Area 2x into y. 2x 2 r cos theta into y is r sin theta. Okay, that means r square sin theta. Previously I found out. I found so r square means r square, and sin 2 theta is sin 2 into pi by 4. Sin 2 into pi by 4 हम लोग निकाल चुके हैं. So r square 2 to cancel sin pi by 2. Sin pi by 2 is 1. So answer is r square. So bit B is the answer. So guys, this maximum minimum question completed. Now come to question number 2. For case study questions, also questions may be from areas. Okay, what is the question? Okay. So question is, consider the following equations of curve x square equal to y and y equal to x. On the basis of the information, answer the following questions. Bit 1, the point of intersection of both the curve. So x square equal to y. X square equal to y, this is the parabola, upward parabola. And y equal to x, you know, this is y equal to x curve. Okay, first bit is what? The point of intersection of both the curve. The point of intersection of both the curve means, point of intersection means what? हम क्लास 10 से जानते हैं कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, या कोई भी क्लास 11 में हम ये देखें कि कोई भी दो कर्व को अगर इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए तो दोनों को सॉल्व कर देना पड़ेगा. तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से y का वैल्यू x है, उसको लेकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. फर्स्ट इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू y, बट y वैल्यू इज x, तो ये x y का वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देंगे. x स्क्वायर इक्वल टू y, ये वाला कर्व है, तो y के जगह पर ये x पुट कर दो, तो x स्क्वायर इक्वल टू x, x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0. सो x इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1. अगर तो फिर बट y इक्वल टू x है ना, तो y इक्वल अगर x है तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y 0 आएगा, x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो y 1 आएगा. सो which answer is correct? 0 0 1 1. So bit B answer is correct. Bit B answer is correct. And here one thing you have to remember that x square equal to x, यहाँ पे कभी x square और ये x को कैंसिल करके implies और x equal to 1 कर देने से
प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा करना मत, दिस इज अ रॉन्ग प्रोसेस। बिकॉज अगर ऐसा करेंगे तो एक सॉल्यूशन मिस हो जाएगा, लॉस आउट ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा। सॉल्यूशन लॉस नहीं करना और वेरिएबल्स को ऐसे कट नहीं करना। नाउ कम टू बिट 2। Bit 2, the graph of the given curve is shown as, so graph x square equal to y का ग्राफ ये सही है और y equal to x, so bit A is the answer. Why bit A answer correct? Because x square equal to y का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होता है, ये जो पैराबोला है this is not x square equal to y, this is the y square equal to x। और यहाँ पे जो ये जो थर्ड वाला ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिखा है, गलत लिखा है। सो ये जो लेफ्ट साइड है तो दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये वाला तो गलत है। सो इस तरह से बीट ए इज द आंसर, बीट ए इज द करेक्ट आंसर। ये वाला गलत क्यों है? क्योंकि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, बट हमें चाहिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। So bit A is the correct answer. Now come to bit 3. In bit 3, you can say the value of the integral from 0 to 1 x dx is what? Okay. The value of integral 0 to 1 integration तो बहुत ही आसान है ये। तो x का integration 0 to 1 x dx, तो x का integration क्या हो जाएगा? x square by 2 0 to 1. So 1 by 2 take outside and x square 0 to 1. 1 by 2 1 square minus 0 square, so 1 by 2. So answer is bit C. And bit 4 is integral value of x square dx, so integration of x square dx from 0 to 1. So x square means x cube by 3, this integration is x cube by 3 0 to 1, फिर लिमिट पुट कर दो, 1 by 3 बाहर निकालो, x cube 0 to 1 equal to 1 by 3 1 cube minus 0 cube, so answer is 1 by 3. So this bit B is the correct answer. Now come to bit 5. अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि the value of the area bounded by the curves x square equal to y and y equal to x is in square unit क्या होना चाहिए? तो कर्व तो इस तरह से है और ऐसा है कि इस तरह से कर्व है, तो ये वाला एरिया हमें चाहिए, तो ये वाला एरिया अगर चाहिए तो ये तो y equal to x है जो कि अपर कर्व है और लोअर कर्व इज व्हाट? x square equal to y. So इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1 क्यों? क्योंकि ओरिजिन पॉइंट तो 0 to 0 0 है एंड दिस पॉइंट इज 1 1, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0, इसका x कोऑर्डिनेट 1, सो 0 to 1 एंड अपर कर्व इज x एंड लोअर कर्व इज y इक्वल टू व्हाट? x स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अगर लोअर कर्व माइनस अपर कर्व कर दिया तो मॉड्यूलस सिंबल दे दोगे, सो आंसर इज पॉजिटिव आना ही चाहिए। तो अब x माइनस x पर इंटीग्रेशन करते हैं, x का इंटीग्रेशन तो हम करके रखे हैं पहले से ही बिट 3 में पूछ चुका है 0 to 1 x क्यूब dx। अब इसे करते हैं बिट 3 में, ये हमें मिल चुका है कि 1 by 2 एंड ये बिट 4 में मिल चुका है कि 1 by 3, बस जस्ट दोनों को माइनस कर दो, सो 6 3 minus 2, so answer is 1 by 6. So completed. Now guys come to question number 3, case study question. ये थर्ड case study question है, it is from this question is from probability. This question is from probability. This is question number 3. That is question number 2, but it is question number 3. Okay. This is question number 3. So by examining the test, the probability that a person is diagnosed with corona when he is actually suffering from it is 0.99. The probability that the doctor incorrectly diagnosed a person to be having corona on the basis of the test reports is 0.001. In a certain city, 1 in 1,000 persons suffers from corona. A person is selected at random and is diagnosed to have corona. On the basis of this information, answer the following question. So फिर से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या बता रहा है? The information given to us by examining the test, the probability that a person is diagnosed with corona. तो जो रिपोर्ट मिल रहा है, जो टेस्ट मिल रहा है उससे कोरोना हुआ है
when he is actually suffering from it, किसी को कोरोना हुआ है और रिपोर्ट भी दिखा रहा है कि कोरोना हुआ है, तो उसका चांसेस जो दैट इज 0.99. द प्रोबेबिलिटी दैट, ये पहला बात वो बोल रहे हैं, सो द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर इज इनकरेक्टली डायग्नोस्ड, डॉक्टर का भी मिस्टेक हो सकता है क्योंकि ऑन द basis of the report, the probability that the doctor incorrectly diagnosed a person to be have corona, डॉक्टर क्या किया है कि डायग्नोस कर दिया कि कोरोना हुआ है, बट पर्सन का कोरोना, एक पर्सन का कोरोना नहीं हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट रिपोर्ट्स इज 0.001, तो नहीं हुआ है कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इनकरेक्टली डायग्नोस्ड, तो डायग्नोस हुआ है कि कोरोना हुआ है, but actually person have not corona. So in a certain city 1 in 1000 person suffers from corona, तो सिटी में कोरोना होने का चांस क्या है, 1 divided by 1000. so इस बेसिस में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पहले बात है कि हम लोग लेंगे ई. ई का मतलब क्या है, व्हाट इज द ई. ई हम लोग सकते हैं कि इवेंट दैट person diagnosed with corona, person diagnosed with corona, मतलब E is the event, इसका मतलब ये है कि पर्सन को डायग्नोस किया गया और उसको कोरोना निकला है, बस दैट इज ए. E मतलब कोरोना निकला. बट अब हम लोग लेंगे इवेंट, बेस थ्योरम का क्वेश्चन, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है. एंड व्हाट इज E1. E1 मतलब इवेंट दैट पर्सन not having corona, person having corona, चलेगा, having not having कुछ भी करो चलेगा, person having corona, having corona. And E2 is the event that person not having corona. बस ये E1 और E2 बता रहा है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी E1, ये पहले हम लिख देते हैं जो डाटा गिवन है. E1 मतलब पर्सन्स को कोरोना हुआ है, हैविंग कोरोना, पर्सन्स को कोरोना हुआ है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे इन ए सर्टेन सिटी 1 in 1000 person suffers from corona, 1 in 1000 person suffers from corona, जो लिखा है कि इन ए सर्टेन सिटी पर्सन्स सफर फ्रॉम कोरोना, कितना 1 in 1000, मतलब 1 by 1000 जो है उन्हें कोरोना हुआ है ना, होता है ना, हो रहा है. सो 1 by 1000 मीन्स 0.001. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन्स नॉट हैविंग कोरोना, तो एक जन को अगर हो रहा है तो कितना जन को नहीं हो रहा है, 999 को नहीं हो रहा है, तो 999 बाय 1000, या ऐसे बोल दो कि 1 minus 1 by 1000, ये ज्यादा बेटर रहेगा. 1 minus 1 by 1000, 1 minus 1 by 1000, मतलब अगर एक सिटी में 1 by 1000 मतलब एक पर्सन को 1000 पर्सन को कोरोना हो रहा है, तो कितने जन को नहीं हो रहा है, 999 को नहीं हो रहा है, तो 1000 minus 1 दैट इज 999 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 0.999. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी E2 ये दोनों हम निकाल दिए. सो प्रोबेबिलिटी E1 और प्रोबेबिलिटी E2. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E by E1 ये क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, मतलब डायग्नोस किए कि कोरोना हुआ है और उसे एक्चुअली कोरोना हुआ है, दिस इज प्रोबेबिलिटी E by E1. E by E1 का क्या मतलब है, E मतलब डायग्नोस किए कि कोरोना हुआ है, एंड E2 मींस व्हाट, E2 मींस पर्सन्स को या कोई भी इंसान को एक्चुअली कोरोना हुआ है, तो ये है प्रोबेबिलिटी E by E1. तो अब देखो जो डाटा गिवन है E by E1 कौन सा है, पहला वाला चीज पूरा फर्स्ट लाइन जो है, बाय एग्जामिन द टेस्ट द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज diagnosed with corona when he is actually suffering from it is 0.99, तो ये वाला आंसर 0.99 है. डायरेक्ट आंसर मैं पहले से बता चुका हूं कि पूरा क्लियर कट है. सो बिट 1 बिट 2 बिट 3 पूरा क्लियर कट ही रहता है,
बिट 4 बिट 5 में ट्रिक्स थोड़ा बढ़ जाता है। बाय एग्जामिन द टेस्ट द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज डायग्नोस्ड विद कोरोना व्हेन ही इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम इट, मतलब डायग्नोस्ड कोरोना ई एंड सफरिंग फ्रॉम इट E1, सो E by E1 यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है कि 0.99, तो हम क्या करेंगे इसे प्रोबेबिलिटी E by E1 को क्या लिखेंगे 0.99, 0.99, मतलब प्रोबेबिलिटी E by E1 मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ diagnosed corona condition that actually having corona, तो ये जो है ये है प्रोबेबिलिटी E by E1, इसका वैल्यू हो गया प्रोबेबिलिटी E by E1 का वैल्यू। प्रोबेबिलिटी E by E1 मींस डायग्नोस्ड की कोरोना हुआ है और E1 मींस एक्चुअली कोरोना हुआ है। अब हम लोग और एक चीज निकालेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E कंडीशन E2, ये भी निकालते हैं, मतलब डायग्नोस किए कि कोरोना हुआ है बट एक्चुअली से कोरोना नहीं हुआ है, मतलब डायग्नोस किए कोरोना हुआ है बट उस पर्सन को कोरोना नहीं हुआ है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डॉक्टर का बाय लुकिंग द रिपोर्ट। देखो कौन सा सेंटेंस इसमें मैच हो रहा है, ये वाला देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर इनकरेक्टली डायग्नोस्ड, मतलब डायग्नोस तो कर दिया डॉक्टर कि कोरोना हुआ है, ए पर्सन टू बी हैविंग कोरोना ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट रिपोर्ट्स इज 0.001, मतलब 0.001 चांस है कि डॉक्टर का गलत रिपोर्ट आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी E by E2, सो प्रोबेबिलिटी E by E2 इज व्हाट 0.001, मतलब डॉक्टर ने डायग्नोस तो कर दिया कोरोना है बट उस पर्सन को कोरोना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन क्या लिखा है इनकरेक्टली डायग्नोस्ड, क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ो, ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट रिपोर्ट्स, ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर इनकरेक्टली डायग्नोस्ड मींस डॉक्टर का जो डायग्नोस हुआ है वो इनकरेक्ट है, मतलब कोरोना हुआ है बल्कि इनकरेक्ट है, मतलब वो है 0.001, सो प्रोबेबिलिटी E by E2। तो इस तरह से हम लोग, ये है बेस थ्योरम का मेन थिंग्स, क्या बेस थ्योरम का मेन थिंग्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी E1 निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना और प्रोबेबिलिटी E by E1 निकालना और प्रोबेबिलिटी E by E2 निकालना, बस यही चार चीज अगर हम लोग निकाल देते हैं, अब जो भी हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वी कैन गिव द आंसर। सो नाउ फर्स्ट बिट के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोरोना। अब ये वाला क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है कि प्रोबेबिलिटी E2 है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोरोना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी E1 मींस पर्सन हैविंग कोरोना, E1 या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी E1 पूछ रहा है, क्योंकि E1 मींस इवेंट दैट पर्सन, सही से लिखते हैं पर्सन, ओके, पर्सन E, okay, so event that person having corona, that is E1, so probability E1 bit 1 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोरोना हुआ है, so persons जो पर्सन को कोरोना हो उसका लिस्ट, तो that is 0.001, 0.001, so which answer is correct, bit A answer is correct। now come to bit 2, bit 2 क्या है, कोरोना is diagnosed when the person actually has corona, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डायग्नोस किया गया मतलब E, कंडीशन दैट व्हेन द पर्सन एक्चुअली हैज कोरोना, मतलब कौन सा केस है वो E1 की E2, E1, प्रोबेबिलिटी E1 पूछ रहा है, कोरोना हुआ है और कोरोना डायग्नोस भी हुआ है, तो डायग्नोस पहले है, कंडीशन दैट कोरोना हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी E by E1 हम लोग निकाल चुके हैं 0.99, so 0.99, so bit B is the correct answer। So now come to bit 3, bit 1, bit 2, bit 3, these three questions always you can see these are the pristine type of questions, means direct questions। now bit 3, corona is diagnosed when the person has not corona, so clear cut है कि probability of E, condition E2 पूछ रहा है ये, मतलब
ये पूछ रहा है कि डायग्नोस हुआ है कोरोना बट उसे कोरोना नहीं हुआ, मतलब डॉक्टर का इनकरेक्ट रिपोर्ट है और वो तो है 0.001, ये हम लोग पहले से निकाल के रखे हैं प्रोबेबिलिटी E by 2, सो इसका आंसर होगा 0.001 मींस बिट सी इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ कम टू नेक्स्ट बिट 4। अब बिट 4 में ट्रिक्स शुरू होता है प्रोबेबिलिटी में और केस स्टडी क्वेश्चंस। बिट 4 बिट 5 क्वेश्चंस आर एक्चुअली ट्रिक क्वेश्चन। सो प्रोबेबिलिटी कोरोना इज डायग्नोस्ड मींस क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मींस डायग्नोस किया गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब कोरोना हुआ। ई मींस क्या? ई मींस द इवेंट diagnosed corona. This is probability of E. Probability E means the event, probability of the event corona diagnosed. अगर कोरोना डायग्नोस्ड हुआ है मतलब कौन सा, किसका हुआ है? जिसका कोरोना हुआ है उसका भी डायग्नोस हो रहा है, जिसका नहीं हुआ है उसका भी डायग्नोस हो रहा है कोरोना। सो मिस रिपोर्ट भी आ सकता है, रॉन्ग रिपोर्ट भी आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसे कहते हैं हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी। इसे हम लोग कहते हैं बेस्ट थ्योरम में इट इज टोटल प्रोबेबिलिटी। सो टोटल प्रोबेबिलिटी मींस सारे केसेस को प्लस कर देंगे। सो प्लस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E कंडीशन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ E कंडीशन E2। दिस इज कॉल्ड द टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब जिसको कोरोना हुआ है, जो पर्सन को कोरोना हुआ है, कोरोना होने वाला चांस कितना है? 0.001। ऐसे क्यों? क्योंकि 1 in 1000 क्वेश्चन में लिखा था 1 in 1000, 1 in 1000 मतलब 1 by 1000, 0.001। अच्छा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E2 क्या होना चाहिए? 0.999। ये भी हम लोगों ने फाइंड किया था, ये भी हम फाइंड किए थे कि 0.999। प्रोबेबिलिटी E1 0.001 और वहीं पे फाइंड किया था 0.999। अच्छा प्रोबेबिलिटी E by E1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कोरोना डायग्नोस्ड एंड कोरोना हुआ भी है, तो ये तो 0.99 है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। और प्रोबेबिलिटी E by E1 देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी E by E1 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E by E1 दैट इज 0.99 और प्रोबेबिलिटी E by E2 0.001। ये 0.99 है, 0.001। अब इसे सॉल्व कर दो। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 0.001 into 0.99 मल्टीप्लिकेशन कर दो इसे। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 3 डिजिट है और 0.99 है, तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स हो जाएंगे 0.00099। सो ये मल्टीप्लिकेशन अंडरस्टूड। 0.99 मतलब 99 और 1 को मल्टीप्लाई करो 99। सो 99 लिखा, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, तो टोटल 5 डिजिट होने चाहिए। 2 डिजिट 99 हो गया और बाकी 3 डिजिट हो। ओके हियर आल्सो मल्टीप्लाई 999 into 1 कितना? 999 और 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 3 डिजिट्स एंड हियर आल्सो 3 डिजिट्स, सो 0.6 डिजिट्स होने चाहिए। सो 0 0 0। सो नाउ ऐड दिस टू, तो ऐड कर दो, इधर 6 डिजिट है, इधर डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स है, सो 0.000999 एंड हियर 0.00099 और लास्ट वाला को 0 ले लो। अब ऐड करो 9 + 0 9, 9 + 9 18, 8 फिर 9 and 18 19, 9 1 carry 1 1, 0 + 0 0, फिर 0.0, so 0.001989। this is the total probability answer। total probability answer means कोरोना डायग्नोस किया गया, चाहे उसका हुआ है चाहे इसका नहीं हुआ है। डायग्नोस करने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.001989। ओके पर्सन नाउ P probability of person is corona given that corona diagnosed means ये क्या बोल रहा है? देखो this bit is probability of person has corona
गिवन दैट कोरोना पर्सन हैज कोरोना, पर्सन हैज कोरोना का क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2, E1. कंडीशन दैट diagnosed मतलब E. This is here will apply Bayes rule. E1 by E. So probability of E1 intersection E divided by probability of E. This is the Bayes theorem rule. Equal to probability of E1 into probability of E. Condition that E1 divided by probability of E1 into probability of E, condition that E1 plus probability of E2, probability of E, condition that E2 equal to divided by, नीचे में तो निकल चुका है 0.001989, ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जितना जल्दी आंसर निकाल सकते हो. और ऊपर पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी E1, द फर्स्ट केस हम लिखेंगे. फर्स्ट केस तो अपने पास ये है 0.000009999. ओके, सो नाउ सॉल्व दिस टू फाइंड द आंसर. सो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे और एक जीरो लगा दो तो हो जाएगा 0990 डिवाइडेड बाई 1989. अब ये जीरो का कोई रोल नहीं. सो 990 को 9 से काटो, नीचे वाला भी 9 से काट रहा है, 9 1 से 9, 9 1 से 9 0. अब यहाँ पे 9 to 18, 18 9 to 18 1, 1 1 0 divided by 2 to 1. So this is the answer. Thank you for watching my video. Bye bye.